اسلام اسلام جی بس یہ کچھ نہ بھی اسلام جی کہہ سکتے ہیں، ہاتھ میں لا سکتے ہیں کہ ارے بہن جی کی ارے بہن جی۔ اچھا جی، خدا آپ کو برکت دے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم کون سا کلام سنا تھا؟ بتائیں۔ شاباش شاباش۔ اس میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ ہم نے کیا ہونا ہے؟ ٹھیک ہو گیا، خدا آپ کو برکت دے۔ کسی نے اپنی زندگی میں اس کو آزمایا کہ مجھے میں کمیاں ہیں اور نکل جائیں؟ ہاللیلویا۔ آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے صلیب کی اہمیت۔ کیا ہے جی؟ صلیب کی اہمیت۔ کلام مقدس میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت کی تلاوت کریں گے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت۔ ہاللیلویا۔ جو پہلے نکالے پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ ہاں جی ہاں جی آمین آمین۔ خدا ان کے کاغلان کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ اور آج کا ہمارا عنوان ہے صلیب کی اہمیت۔ اس خط کا تعارف کچھ یوں ہے۔ اس خط کے مصنف کا نام پالوس رسول ہے۔ اس خط کے کل ابواب 16 ہیں، کل آیات 437 ہیں، اور یہ خط خداوند یسوع مسیح کے موت کے 59 سال بعد لکھا گیا ہے۔ اور اس خط کا مرکزی خیال دنائی ہے۔ کیا ہے جی؟ دنائی ہے۔ آج کا ہمارا عنوان کیا ہے جی؟ صلیب کی اہمیت۔ اس آیت میں جو ہم نے تلاوت کی ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور دنیا والوں کے لیے صلیب جو ہے ہلاکت ہے، مگر ایمانداروں کے لیے کیا ہے؟ مسیح کی صلیب ہمارے لیے کیا ہے؟ زندگی ہے اور نجات کا وسیلہ ہے۔ ہاللیلویا۔ صلیب کا لفظ انگریزی زبان میں سے کراس کہا جاتا ہے، اور لاطینی زبان میں کروکس کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے لاطینی زبان میں؟ کروکس کہا جاتا ہے۔ صلیب کی علامت آپ نے اکثر و بیشتر عمارتوں پر، کتابوں پر، دیواروں پر اور لوگوں کے گھروں پر بھی دیکھی ہوگی۔ اکثر و بیشتر چرچز کے اوپر بھی صلیب کی علامت بنائی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اکثر لوگ اپنے گلوں میں بھی صلیب پہن کے گھومتے ہیں فیشن کے طور پر۔ کس کے طور پر جی؟ فیشن کے طور پر اسے استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ اس کی حقیقی مطلب کو نہیں جانتے، حقیقی اہمیت کو نہیں جانتے، وہ اس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ کس کی اہمیت سے؟ صلیب کی اہمیت سے۔ ہاللیلویا۔ اور صلیب کے معنی وہ نہیں جانتے، لیکن آج کے دور میں ہم اس کے مطلب زیادہ لیتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی میں صلیب کی بہت اہمیت ہے۔ بہت کیا ہے جی؟ اہمیت ہے۔ اور جو شخص خدا کے پیغام پر اور اس کے کلام پر یقین رکھتا ہے، اس لیے یہ صلیب ان کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ بہت کیا رکھتی ہے جی؟ اہمیت رکھتی ہے۔ ہاللیلویا۔ مسیح کی موت ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور اس کے وسیلہ سے ہم کیا پاتے ہیں؟ نجات پاتے ہیں۔ اور مسیح کی صلیب جو ہے، اس کی موت جو ہے، نفرت کی بجائے محبت میں بدل جاتی ہے۔ کس میں بدل جاتی ہے؟ محبت میں بدل جاتی ہے۔ غم کی بجائے کس میں بدل جاتی ہے؟ خوشی میں بدل جاتی ہے۔ اور صلیب کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے خدا خود گناہگار انسان سے رشتہ جوڑتا ہے۔ کیسے جوڑتا ہے؟ کہ جب آدم سے گناہ ہوا تو انسان کیا ہو گیا؟ گناہگار ہو گیا، خدا سے رشتہ اس کا ٹوٹ گیا تھا۔ اور پھر بہت سارے نبی پیغمبر آئے، مگر وہ رشتہ واپس قائم نہیں ہو سکا۔ مگر کس کے وسیلہ سے قائم ہوا؟ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اور اس کی صلیب کے وسیلہ سے، جس پر اس نے اپنی جان دی۔ اسی لیے صلیب کی اہمیت ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے نجات کا وسیلہ بنا۔ لوگوں کے لیے یہ لعنتی موت تھی، مگر ہمارے لیے کیا ہوا؟ نجات کا وسیلہ بنا۔
और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि यीशु ने अपनी जान देकर हमें बचा लिया। हालेलुया। सलीब इसीलिए हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि ये एक पचीदा जिंदगी को सादगी देती है। हालेलुया। मसरूफ दुनिया में हमें सिमत बता देती है कि हमें किस सिमत में जाना है, और जिन्हों सिमत मिल जाए वो फिर एक दिन की पहुंच जाता है। अपनी सिमत का होना बहुत जरूरी है। जिसको यही नहीं पता हमने कहाँ जाना है तो वो बुखलाया रहता है, केड़ी बस में बवा, किधर जावा, केड़े शहर जावा। और जिसको सिमत मिल जाए वो अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैंने इस सिमत में जाना है। हालेलुया। और बेचैन जिंदगी को हौसला देती है। हम अक्सर व बेशतर बहुत बेचैन होते हैं, मगर एक हमें हौसला मिल जाता है कि कोई है जो हमसे प्यार करता है, कोई है जिसने हमारी खातिर अपनी जान दी, कोई है। हालेलुया। फिर क्या होता है, एक हौसला पैदा हो जाता है, एक सब्र आ जाता है, एक मजबूती मिल जाती है, और वो सलीब की अहमियत से। हालेलुया। और हमें नजात भी उसी के वसीला से मिली है। हम अपनी नसीहत के लिए एक आयत देखेंगे, मरकस उसका 8वां बाब उसकी 34वीं आयत। जो भी आयत निकाले पहले पढ़े मगर थोड़ा ऊंचा। हालेलुया। 8वां बाब और 34वीं आयत। उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे बोले। आमीन। 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 हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद क्या फरमा रहे हैं कि फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत हम पढ़िएगा दोबारा, पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे। अब यहाँ पर देखें, सिर्फ शागिर्दों के लिए पैगाम नहीं है, भीड़ के लिए नहीं है, अगर कोई, सबके लिए। और उसमें एक चीज शर्त रखी गई है, ठीक हो गया? हमें छोटा बनना है, हमें आजिज बनना है, हमें अपनी खुदी का इनकार करना है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं अपने तौर पे कुछ नहीं कर सकता हूं, खुदा मुझसे होकर सब कुछ कर सकता है। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा यीशु मसीह क्या फरमा रहे हैं कि अपनी खुदी का इनकार करें। हाँ जी पढ़िएगा। और अपनी सलीब उठाए, हाँ जी, और मेरे पीछे बोले। अब सबसे पहले अपनी खुदी का इनकार करना है, अपनी सलीब उठानी है। हालेलुया। और किसके पीछे चलना है? खुदावंद यीशु मसीह के लिए, क्योंकि वो हमारे लिए रोल मॉडल है, वो हमारे लिए एक नमूना है। उसने अपनी जान और जिंदगी इसी तरह गुजारी कि हम उसको देख के अपनी जिंदगी गुजार सकें और अपनी खुदी का इनकार करके उसके पैरोकार बन सकें। तो फिर हमारे लिए बरकतें भी हैं, फिर हमारे लिए निजात भी है, और फिर हमारा उससे राब्ता भी है। और जो राब्ता टूटा है खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप से बना रहता है। हालेलुया। इसी तरह हम कलाम मुकद्दस में से लूका उसका 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत पढ़ेंगे। लूका उसका 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत में क्या लिखा है? जब हम अपनी खुदी का इनकार करते हैं तो खुदा हमें बहुत सारी बरकत से नवाजता है। हम इस आयत में देखेंगे कि खुदा हमसे क्या फरमा रहा है। जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। आमीन। 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 अब यहाँ पर देखिए खुदा यीशु मसीह क्या फरमा रहा है कि अगर हम अपनी सलीब नहीं उठाएंगे तो हम उसके शागिर्द कहलाने के लायक भी नहीं है। साफ तौर पर खुदा यीशु मसीह फरमा रहे हैं। पढ़िएगा जरा दोबारा, सॉरी। जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर बात वाज़िया हो गई है कि हमें अपनी खुदी का भी इनकार करना है, अपनी सलीब को भी उठाना है और खुदावंद यीशु मसीह के पीछे भी चलना है। अगर उसके शागिर्द कहलाना है तो, अगर नहीं कहलाना तो फिर तो मसला नहीं। मगर उसमें नुकसान किसका है? तो इसीलिए सलीब हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। हमें उसकी अहमियत को जानना चाहिए। हालेलुया। 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 यहाँ तक समझ आ गई आपको?
आज का हमारा हासिल कलाम यही है मेरे अजीजों, अगर हम निजात के लिए सलीब पर कभी नहीं आए तो हमें खुदावंद यीशु मसीह के सलीब के नजदीक आने की क्या है जी? थोड़ा ऊंची बोलिया तो क्या है जी? हम पता चलिया खुदा ने हमें हमसे प्यार किया है और उसके बेटे ने उसका अपना बेटा हमारे लिए भेजा है, हमें बख्शा है। हालेलुया। और हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम क्या उससे प्यार करते हैं तो उसके तोहफे को भी कबूल करते हैं। हालेलुया हालेलुया। और मसीह के सलीब के पास आने का वक्त है जो हमारे लिए एक सिद्ध भी है, हौसला भी है और खुशी भी है। हालेलुया। और सबसे बढ़कर जिंदगी और निजात का वसीला भी है। जब हम उसकी सलीब के पास हमें कितनी चीजें मिल जाती हैं, एक सिद्ध मिल जाती है, हौसला मिल जाता है, खुशी मिल जाती है, हमेशा की जिंदगी मिल जाती है और निजात भी मिल जाती है। बजाय फिर खुदा की तारीफ। ये क्या बोल रहा है? जब हम उसकी सलीब के पास आएंगे, उसकी सलीब की अहमियत को जानेंगे तो वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत दे। आए